So far we have studied about welding and various welding processes. We have studied electric arc welding, gas welding, and resistance welding processes. Now we have to study brazing and soldering. Okay, there is some difference between brazing, soldering, and welding. Actually, welding is a metallurgical fusion process in which the parts to be joined are melted by the application of heat. Then they are properly mixed or fused and allowed to solidify. Okay, and if needed, we supply filler material whose composition is same as the base metal. But the process is somewhat different in case of brazing and soldering. By brazing and soldering, we are joining similar or dissimilar metals, but the difference lies in the process of brazing and soldering. In case of brazing and soldering, whatever workpieces we want to join, then we have to heat those workpieces up to certain temperature, but there is no need to melt the workpiece. That means we will preheat the workpiece only so that brazing and soldering process takes place properly. And then we apply the filler material in molten state. We melt the filler material and that filler material is applied to the joint to be made. And it is the filler material which solidified during the process and it holds the two parts together. Joining takes place because of this surface alloying. ओके तो इसमें जो बेसिक डिफरेंस आता है ब्रेजिंग, सोल्डरिंग और वेल्डिंग में, वो ये आता है कि वेल्डिंग में अपन वर्कपीस की हल्की सी मेल्टिंग कराते हैं जहाँ पे अपन को ज्वाइनिंग करनी होती है. बट इन केस ऑफ ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग हम किसकी मेल्टिंग करा रहे हैं? वी आर मेल्टिंग द मटेरियल ओनली. वेल्डिंग में यदि आवश्यकता पड़ती है तो हम फ्लर मटेरियल की भी मेल्टिंग कराते हैं और मोल्टन मेटल पूल में या वेल्ड पडल में उसको सप्लाई करते हैं. ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग में जिस पार्ट को आपको ज्वाइन करना होता है उसकी प्रीहीटिंग तो करते हैं बट उसकी मेल्टिंग नहीं करते हैं. मेल्टिंग हम किसकी करते हैं? फिलर मटेरियल की. फिलर मटेरियल जो कि लिक्विड स्टेट में होता है उसको वर्कपीस के ऊपर सप्लाई करते हैं. ठीक है, वो वर्क सरफेस में जहाँ पे ज्वाइनिंग होनी होती है वहाँ पे फैल जाता है, फिर वो सॉलिडिफाई होता है. सॉलिडिफिकेशन के बाद जो फिनोमेना होता है वो सरफेस अलॉइंग का होता है और डिफ्यूजन का होता है. डिफ्यूजन फिनोमेना में क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हाई एनर्जी स्टेट में होते हैं वो ट्रांसफर करते हैं. वो फिलर मटेरियल से ट्रांसफर हो सकते हैं वर्कपीस की तरफ, बेस मेटल की तरफ, बेस मेटल से ट्रांसफर हो सकते हैं वर्कपीस की तरफ. सो सरफेस, बिकॉज ऑफ सरफेस अलॉइंग एंड डिफ्यूजन, ज्वाइनिंग टेक्स प्लेस and it is the filler material only which gets solidified during brazing and soldering. Now, in order to start the process, it is necessary that gap between two workpieces to be joined should be clearly maintained. जो गैप होना चाहिए वर्कपीस के बीच में जिनको अपन ज्वाइन करना चाहते हैं उनके बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए. एंड फ्लो ऑफ filler material to the entire surface occurs because of this gap only, and the phenomena responsible for supplying the filler material into the work surface is capillary action. ठीक है ना? तो ये हल्का सा एक इंट्रोडक्शन, इसके बाद अपन आगे चलते हैं. इसमें दो फिगर आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे. दिस इज द फिगर, थ्योरेटिकल फिगर, और यहाँ पे प्रैक्टिकल किया जा रहा है बिल्कुल उसी प्रकार का. यहाँ पे फिलर मटेरियल आपको कैसे दिख रहा है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ रॉड. ठीक है, it is heated and melted by the application of the flame obtained by using this welding torch. मतलब ये गैस वेल्डिंग नहीं है. देखो, गैस वेल्डिंग में भी अपन इसी प्रकार का फिगर बना सकते हैं, ठीक है ना, और ब्रेजिंग में भी या सोल्डरिंग में अपन ने इस प्रकार का फिगर बनाया. अब अंतर क्या आएगा यहाँ पे कि ये जो फ्लेम रहेगी, यदि ये गैस वेल्डिंग है तो फ्लेम इस फिलर मटेरियल के साथ साथ इन वर्कपीस जिनको अपन को ज्वाइन करना है इनको भी मेल्ट करेगी. But in case of brazing and soldering, the flame obtained by this welding torch will melt this filler material only. ठीक है ना? तो filler material वहाँ पे melt होगा और वो कहाँ पे जाना चाहिए? That filler material in liquid state should reach to each end of this surface के जितना भी जगह पे है उस सब जगह यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए. In this figure you can see two workpieces. One is cylindrical in shape, another is quadrilateral.
तो इनके जो सरफेस कॉन्टेक्ट सरफेस है वो सिलेंडर ही होगा, तो जो ये सॉरी सर्कल होगा। तो इस सर्कुलर स्पेस में इस फिलर मटेरियल का पहुंच जाना चाहिए, और वो तभी पहुंच पाता है जब यहाँ पे कैपिलरी रिएक्शन इफेक्टिव होती है। ठीक है ना। अब कैपिलरी रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन द क्लियरेंस बिटवीन दीज टू वर्क पीसेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर अगेन ब्रेजिंग रिपीट कर में दीजिए आ रहा है सर। हाँ, आ रहा है समझ में? यस सर, एक बार और रिपीट कीजिए। देखो, वेल्डिंग में यदि मान लो ये वेल्डिंग है, गैस वेल्डिंग होने जा रही है यहाँ पे, तो ये जो फ्लेम रहेगी टॉर्च के आगे जो हमको मिल रही है, ये क्या करेगी? इट विल मेल्ट द फिलर मेटल और फिलर मटेरियल एज वेल एज दीज टू वर्क पीसेस टू बी ज्वाइंट। तो इसके कुछ पोर्शन को, ठीक है ना, इस वर्क पीस के कुछ पोर्शन को मेल्ट करेगी, फिलर मटेरियल को मेल्ट करेगी। इसके बाद वो प्रॉपरली फ्यूज होगा, हम फ्लेम को दूसरी का डायरेक्ट करेंगे, और जो पुराना मेटल रहेगा वो सॉलिडिफाई होता है, पुराना मोल्टन मेटल जो मेल्ट हो चुका है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। So in this way you will get a joint in case of welding. But in brazing we have to melt this filler metal only. इसलिए जो फ्लेम है इसकी काफी दूर रखी गई है। देखो, इसमें जो इनर वाइट कोन है वो वर्क सरफेस से बहुत दूरी पे है। यस सर। हाँ, मेल कर दीजिए सर। तो इसमें जो आपको ये फ्लेम दिख रही होगी, ये फ्लेम यहाँ पे वर्कपीस से बहुत दूर है, ठीक है ना। ये वर्कपीस को सिर्फ प्री हीट कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे ये आपको दूसरा ये रॉड दिख रही होगी, ये फिलर मेटल है। ये फिलर मटेरियल यहाँ पे मेल्ट होता है इसके द्वारा। और फिलर मटेरियल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इट शुड बी अबव 450 डिग्री 400 सेंटीग्रेड, 450 बट इट शुड बी डिग्री बिलो द सेल्सियस। सॉलिडस टेम्परेचर ऑफ द बेस मेटल। तो ये अपन को बेसिक डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि यदि आपने किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो आंख बंद करके क्या बोलेगा, ये गैस वेल्डिंग का फिगर है, इसको भी आप गैस वेल्डिंग का फिगर बोल सकते हो। लेकिन हमें दिख रहा है कि इनर वाइट कोन वर्क सरफेस से बहुत दूर है, तो ये इसको प्रीहीट तो कर सकता है, बट इट कैन नॉट मेल्ट द वर्क पीस। क्यों? क्योंकि जो बेस मेटल जैसे स्टील है उसका टेम्परेचर कितना होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है अराउंड 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें आउटर ब्लू फ्लेम है जो अपन ने पढ़ा, न्यूट्रल फ्लेम में दी है, तो उसका टेम्परेचर अराउंड 1200 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है ना। तो इसको मेल्ट नहीं कर सकता है, ये मेल्ट तभी होगा जब इनर वाइट कोन इसकी कांटेक्ट में आएगा। तो यदि किसी फिगर में इनर वाइट कोन इधर आ गया है तो फिर ये गैस वेल्डिंग का काम हो जाएगा वहां पर, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा? गैस वेल्डिंग का काम हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर द, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया होगा। नाउ वी कंसीडर द डेफिनेशन ऑफ ब्रेजिंग। इट इज मेकिंग ऑफ अ जॉइंट with the help of, एक मिनट, सर वॉइस नहीं आ रही सर आपकी। चलो, तो डेफिनेशन क्या है? इट इज मेकिंग ऑफ अ ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ अ फिलर मटेरियल, ठीक है। फिलर मटेरियल के द्वारा अपन ज्वाइनिंग कर रहे हैं। whose liquidus temperature means melting point of the filler material is above 450 degree centigrade, and this melting point is below the solidus temperature of the base metal मतलब इन दोनों वर्क पीस में से ये बेस मेटल हो गया। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। अब इसमें फिलर मटेरियल इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज विदाउट दिस फिलर मटेरियल वी कैन नॉट डू ज्वाइनिंग, ठीक है। यदि अपन वेल्डिंग को कंसीडर करते हैं तो देयर आर सर्टेन प्रोसेसेस इन व्हिच फिलर मटेरियल इज नॉट नीडेड, लाइक रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेसेस। रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस, जितनी प्रोसेस होती हैं उन सब में कहीं पे भी फिलर मटेरियल की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब ये फिलर मटेरियल हमको सप्लाई करना है, तो इसमें लिखा गया है it reaches into the joint by capillary action। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि इसका जो सर्कुलर सरफेस होगी, इस सिलिंड्रिकल वर्कपीस की सर्कुलर बेस होगा जो कि रेस्ट कर रहा होगा इस फ्लैट सरफेस के ऊपर, उसको हल्का सा ऊपर उठाना है, ठीक है ना। सब कुछ दिखेगा और काट कूट दो, कुछ भी कर दो। चलो बेटे, बाकी लोग म्यूट करो अपने तो आप नहीं को, आता बाकी है, रेस्ट ऑफ द पीपल वो प्लीज करते म्यूट, हैं, पता भी नहीं प्लीज म्यूट चलता कौन ने योरसेल्फ, किया। प्लीज जूम तो म्यूट बंद हो गया यार, योरसेल्फ, ये लोग क्यों चला रहे हैं? मैंने प्लीज म्यूट योरसेल्फ। कविराज म्यूट करो अपने आप को। रोल नंबर 48, रोल नंबर 40। चलो, तो इस फिलर मटेरियल का इसके अंदर जाना जरूरी होता है। तो कैसे पहुंचेगा? इट विल रीच टू द ईच एंड एवरी सरफेस ऑफ दिस सर्कल बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन ओनली, एंड कैपिलरी एक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द गैप बिटवीन दीज टू सरफेसेस।
सो दैट गैप शुड बी केयरफुली मेंटेन्ड। यदि गैप बहुत कम होगा तो फिलर मटेरियल फ्लो नहीं हो पाएगा, और गैप बहुत ज़्यादा कर दिया तो भी ये फ्लो नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन इसमें जो लगी होती है कि द गैप और क्लियरेंस बिटवीन दीज टू सरफेसेस, मतलब ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस रखी है इस फ्लैट सरफेस के कितने ऊपर है, वो कैपिलरी एक्शन तभी होगा जब वो गैप प्रॉपर होगा। ठीक है ना, दिस इज द बेसिक कंडीशन। इसके अलावा क्लीनिंग वगैरह भी वो भी अपन पढ़ लेंगे। नाउ biggest advantage of this process is that we can join dissimilar metals effectively. Dissimilar metal like ferrous, non ferrous, यहाँ पे तो स्टील ही लिखा है, कास्ट आयरन स्टील, इनको भी अपन इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। लेस डिस्टॉर्शन इन ब्रेज्ड ज्वाइंट ड्यू टू लेस हीट। इसका क्या मतलब हुआ, देखो क्या होता है, इफ it would have been welding process then in order to melt the workpiece we need high heat। यदि ये स्टील है तो कम से कम हमको 1600-1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीट कराना पड़ता है। अब उस केस में क्या होता है, वर्कपीस के अंदर कुछ स्ट्रेसेस इंड्यूस हो जाती हैं, अपने आप डेवलप हो जाती हैं। आप लोग ये बाद में पढ़ोगे, पढ़ने में आएगा कि वेल्डिंग की वजह से वर्कपीसेस के अंदर स्ट्रेसेस इंड्यूस हो जाती हैं, जिनको थर्मल स्ट्रेसेस बोलते हैं, और वो उसके अंदर स्टोर होके रहती है इवन इफ द वर्कपीस रीचेस टू द रूम टेम्परेचर। लेकिन यदि ये ब्रेजिंग है या सोल्डरिंग है जिसमें कि हीटिंग कम हो रही है, हम हीटिंग किसकी कर रहे हैं, वी आर मेल्टिंग द फिलर मटेरियल ओनली एंड वी आर प्री हीटिंग द मेटल ओनली। तो प्री हीटिंग में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक इसको हीट नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पे हीटिंग का रिक्वायरमेंट कम रहता है, और उसके साथ साथ जो डिस्टॉर्शन होगा यहाँ पे या जो स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगी इस वर्कपीस के अंदर वो कम होंगी। ठीक है ना। फिर लिखा है हीट ट्रीटमेंट ऑफ पार्ट्स नॉट अफेक्टेड बाय ब्रेजिंग। क्या मतलब हुआ, शायद आप लोगों ने हीट ट्रीटमेंट का वर्ड सुना। कोई जानता है हीट ट्रीटमेंट, व्हाट इज हीट ट्रीटमेंट, बता सकता है कोई? अपने आप को अनम्यूट करो, बताओ यदि किसी को पता है तो। नहीं पता किसी को, कोई भी नहीं जानता व्हाट इज? सर किसी ईशान चीज को खुराना? हीट कर हाँ सर किसी चीज को हीट करना जब ताकि उसको अपन स्टिफ कर दें एकदम हीट करके, हीट ट्रीटमेंट देते नहीं, हैं देखो शायद। क्या होता है, कई बार आपने सरफेस माने वर्कपीस देखे होंगे जिनकी स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होती है, लेकिन यदि उसी वर्कपीस को हीट किया जाए, हीट करने के बाद कुछ समय तक उस टेम्परेचर पर रखा जाए, फिर उसको ठंडा किया जाए रूम टेम्परेचर तक, तो ये प्रोसेस कहलाती है हीट ट्रीटमेंट। देयर आर वेरियस प्रोसेसेस लाइक अनीलिंग, टेम्परिंग, मार टेम्परिंग, ठीक है ना, नॉर्मलाइजिंग, ये हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेसेस होती हैं। और हीट ट्रीटमेंट का एक काम होता है कि मटेरियल की स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना, और जो स्ट्रेसेस इंड्यूस हैं उनको रिलीव करना, उनको हटाना वहाँ से। तो यदि कोई वर्कपीस हमारे पास पहले से है जिसमें हीट ट्रीटमेंट किया हुआ है, यदि हम वेल्डिंग करने जाएंगे तो वेल्डिंग में इसमें के ऊपर हम ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं, उसकी मेल्टिंग भी कर रहे हैं, तो दोबारा उसका यहाँ पे स्ट्रेसेस इंड्यूस हो जाएंगे और हीट ट्रीटमेंट उसका बिगड़ जाएगा। बट व्हेन वी ज्वाइन दिस टू वर्कपीसेस बाय ब्रेजिंग और सोल्डरिंग, then heat, since the amount of heat imparted to the workpiece is very small, ठीक है ना, that's why heat treatment of the parts joined by brazing or soldering is not affected। ठीक है, this is the main reason। so these are some of the biggest advantages of brazing as well as soldering। वो भी अपन बाद में देख लेंगे, लेकिन अपन ने ब्रेजिंग को तो मान के चलो। अब इसके अलावा जो यहाँ जो लिखे हुए हैं, 3 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, these 3 are the disadvantages और demerits of the brazing process। क्या है वो? Braided joint not useful for high temperature service। What does it mean? इसका मतलब होता है कि once we have prepared a joint by brazing, तो उस केस में braced joint क्या अपन यहाँ पे देखने लगता है। Now the joint has joint किसकी वजह से बना है? It has been produced because of the filler material only, which joins these two parts together। यदि हमने इस असेंबली को जो कि हमने तैयार किया है ब्रेजिंग के द्वारा, उसको किसी सर्विस में रखा, किसी फंक्शन में लाया उसको, जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है, होता राइज नहीं होता। कभी भी जब कोई अपन मैकेनिकल पार्ट में ट्रांसमिशन, एनर्जी ट्रांसमिशन होता है, तो वहाँ पे हमेशा फ्रिक्शन जनरेट होता है, उसकी वजह से कुछ हीट भी जनरेट हो जाती है। तो इसी प्रकार की कहीं पे अपन इस कंपोनेंट को इस्तेमाल करते हैं, तो उस केस में सर्विस टेम्परेचर यदि बहुत ज़्यादा हो जाए, और वो इतना ज़्यादा हो कि इट विल मेल्ट दिस फिलर मटेरियल ऑल्सो। एक्चुअली ब्रेजिंग में जो फिलर मटेरियल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? इट शुड बी मोर देन 450 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लो उसका 600 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हमने जिस सर्विस में इसको इस्तेमाल किया,
वहाँ पे टेम्परेचर जनरेट हो रहा है अराउंड 700-800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये पार्ट जब उस अपनी जगह पे फंक्शन करेगा तो उसमें क्या होगा, जो फिलर मटेरियल होगा वो मेल्ट हो जाएगा, इसलिए ये ज्वाइंट यूजफुल नहीं रहेगा। So braze joint is not useful for high temperature service. This is the biggest disadvantage of the brazing as well as soldering. ठीक है। दूसरा है color of filler metal may not match with base metal. देखो यहाँ पे जो फिलर मटेरियल है और वेल्डिंग का जो फिलर मटेरियल है उसमें हल्का सा डिफरेंस होता है। कोई डिफरेंस बता सकता है क्या क्या डिफरेंस होना चाहिए? यदि कोई बता सकता है तो बताओ अपने आप को अनम्यूट करके, अदरवाइज मैं तो बताऊंगा ही। चांदनी बेटे आपको पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिलर मटेरियल यूज्ड इन ब्रेजिंग एंड फिलर मटेरियल यूज्ड इन सोल्डरिंग ब्रेजिंग? एनीबॉडी? सर जो वो टेम्परेचर अलग अलग होता है। हाँ, और देखो सबसे बड़ा सर जो डिफरेंस फ्लर आता है मटेरियल सोल्डरिंग, हाँ बोलो बेटा। सोल्डरिंग में जो फ्लर मटेरियल होता है जो उसकी बेस मेटल होती है उसी की जैसी होती है, मतलब जिस नहीं, मेटल की वेल्डिंग में उसकी होता है, वो। वेल्डिंग में हाँ सर, वेल्डिंग में। तो फ्लर मटेरियल में ऐसा नहीं है। ठीक है। और ब्रेजिंग या सोल्डरिंग में जो फिलर मटेरियल होता है वो थर्ड मटेरियल होता है। मान लो यहाँ पे दो वर्क पीस हैं, एक है ए एक है बी। तो जो फिलर मटेरियल है वो ना ए जैसा है ना वो बी जैसा है, वो सी है, कुछ अलग ही है वो। ठीक है ना। Yes, sir. और Yes, इस वजह से क्या होता है, उसका जो कलर होता है वो अलग दिखता है। जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है ना तो ये अलग दिखता है। ठीक है। जबकि इफ इट इज वेल्डिंग प्रोसेस देन फिलर मटेरियल कंपोजिशन इज सिमिलर टू बेस मेटल। हो सकता है डिसिमिलर मेटल्स हो सकता है सिमिलर मेटल्स हो, लेकिन जो भी फिलर मटेरियल होगा उसका कंपोजिशन इन दोनों में से किसी एक जैसा होगा। ठीक है ना। तो उसमें कलर का इतनी दिक्कत नहीं आती है, हालांकि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, बट देयर इज द क्वेश्चन ऑफ अपीयरेंस ओनली। इसका अपीयरेंस हल्का सा कुछ अलग हो जाता है। ये दो वर्कपीस को अपन जब ज्वाइन करेंगे ब्रेजिंग और सोल्डरिंग में, तो वो ये तीसरी चीज बीच में अपन को देखने लगेगी, वो इंडिकेट करती है कि इसके या तो ब्रेजिंग या सोल्डरिंग की गई है। ठीक है। बट बिगेस्ट डिसएडवांटेज इज दैट ब्रेज ज्वाइंट हैज slightly less strength as that obtained by welding. ठीक है। तीसरा है ज्वाइंट मस्ट बी डिजाइंड प्रॉपरली। अब ज्वाइंट का मतलब ये ज्वाइंट है, इस वर्कपीस को हमें किस शेप में रखना है और कितनी दूरी पर रखना है, तो इसलिए क्लियरेंस बिटवीन पार्ट्स टू बी ज्वाइंट मस्ट बी क्रिटिकली कंट्रोल्ड। इसका मतलब हुआ यदि क्लियरेंस यहाँ पे प्रॉपर नहीं है then what will happen, capillary reaction would not take place and filler material which we have generated here at the outer surface, it will not reach to the inside complete surface. इसलिए क्लियरेंस यहाँ पे होना जरूरी है। तो एक बेसिक हल्का सा डिफरेंस मतलब इंट्रोडक्शन था, डेफिनेशन थी, एडवांटेज डिसएडवांटेज। इस स्लाइड में यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप उनसे पूछ सकते हैं। आगे चलें। यस सर। चलो अब इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखे गए हैं। बेसिकली दिस इज क्लीनिंग नीडेड ऑफ द ज्वाइंट। यदि हम ज्वाइंट की ब्रेजिंग करने जा रहे हैं या वर्क सरफेस जिसको हम ज्वाइन करना चाहते हैं उसकी थॉरली क्लीनिंग नहीं की है, तो वर्क सरफेस के ऊपर डर्ट हो सकता है, ग्रीस, ऑयल, ऑक्साइड, स्किल्स में प्रेजेंट ओवर द सरफेस। ठीक है ना। यदि हम उसकी सीधी सीधी ब्रेजिंग कराते हैं तो जो ब्रेज्ड ज्वाइंट बनेगा उसकी स्ट्रेंथ कम रहेगी, क्योंकि वो सेटल हो जाएगा फिलर मटेरियल के बीच में, सॉलिडिफाई हो जाएगा। और जब फिलर मटेरियल सॉलिडिफाई हो जाएगा तो वो ऑक्साइड, स्केल, ग्रीस, डर्ट वहां पे प्रेजेंट रहेगी एंड इट विल मेक द ज्वाइंट वीकर। ठीक है। That's why thorough cleaning or proper cleaning of the joint before brazing or soldering is must. Any dirt or grease or oil present on the surface can be removed by solvent. Solvent means some chemical. Similarly, oxides, scales present on the surface are removed by acid pickling. What is the meaning of acid pickling? Acid pickling का मतलब होता है कि एसिड का कंटेनर रहेगा, उस कंटेनर में जिन वर्कपीस को हमें ज्वाइन करना है ब्रेजिंग को उसको अंदर डुबो देंगे फॉर सम टाइम। तो जो एसिड रहेगा वो उस वर्कपीस के ऊपर एक्ट करेगा और जो ऑक्साइड्स की लेयर है, स्केल्स की लेयर है, वो निकल के अलग हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस चीज को बोला गया एसिड पिघलिंग। और ये सॉल्वेंट जो लिखा है, सॉल्वेंट का मतलब सिंपल अपन सॉल्वेंट अप्लाई करेंगे, उसको वाइप कर देंगे तो जो भी डर्ट, ग्रीज, ऑयल है वो वहां से निकल के अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर मतलब है कि वॉट एवर फॉरेन मटेरियल विच इज प्रेजेंट ओवर द सरफेस टू बी ब्रेज्ड, दैट फॉरेन मटेरियल शुड बी रिमूव्ड प्रॉपर्ली। ठीक है। आइदर बाय एसिड पिघलिंग और बाय यूजिंग सम केमिकल सॉल्वेंट। ठीक है।
Then next we need flux. In the case of welding, we have seen the function of flux also. It is used for generation of for formation of oxide, which further combines with the molten metal pool and slag is formed. But the flux used in case of brazing does not form any kind of slag. यहाँ पे जो फ्लक्स है हम अप्लाई करते हैं वो एंटायर सरफेस पे पहले से लगा के रख देते हैं, ठीक है ना। और जो फ्लक्स होता है वो किसका बना होता है? इट इज मिक्सचर ऑफ बोरेक्स, बोरिक एसिड, सम क्लोराइड्स, फ्लोराइड्स, टेट्राबोरेट्स, वेटिंग एजेंट। अब ये नाम आपको रटना जरूरी है क्योंकि जो फ्लक्स यहाँ पे इस्तेमाल होता है ब्रेजिंग में और जो इस्तेमाल होता है सोल्डरिंग में वो अलग अलग होता है। दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द फ्लक्स मटेरियल यूज्ड इन केस ऑफ ब्रेजिंग। It can be a single material, it can be a mixture of these materials, borax, boric acid, chlorides, fluorides, tetraborates and wetting agent. कैसे अप्लाई करेंगे? तो it can be in liquid form, it can be in the form of paste also. So it can be applied by spraying, by a pressurized applicator or by brushing also. मतलब जिस सरफेस को अपन को ब्रेजिंग करनी है उस सरफेस के ऊपर सफिशिएंट क्वांटिटी में पहले से फ्लक्स को या तो स्प्रे के द्वारा या ब्रश के द्वारा या किसी प्रेशराइज एप्लीकेटर के द्वारा वहां पर लगा के रख देंगे। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे? वो जो फ्लेम है उसको सामने लाएंगे, वर्कपीस को फिलर मटेरियल को मेल्ट करेंगे, या फिलर मटेरियल अलग से लिक्विड स्टेट में होगा उसको आगे सीधे वहां पे डाल देंगे, पोर कर देंगे, सप्लाई कर देंगे, जिससे क्या होगा वो फिलर मटेरियल कैपिलरी रिएक्शन की वजह से सब तरफ फैल जाएगा। लेकिन जो फ्लक्स अवेलेबल वहां पे होगा वो फिलर मटेरियल के साथ रिएक्शन करके वहां पे ऑक्साइड फॉर्मेशन नहीं होने देगा। उसी प्रकार से चूंकि वर्कपीस को हम पहले से प्रीहीट करते हैं तो जो फ्लक्स रहेगा उस वर्कपीस के ऊपर भी ऑक्साइड फॉर्मेशन नहीं होने देगा। तो जो फ्लक्स हैं वो ये इस्तेमाल होते हैं और ये कैसे अप्लाई किए जाएंगे हमने देख लिया। नाउ व्हाट अबाउट फिलर मटेरियल? फिलर मटेरियल नॉर्मली दो प्रकार के लिखे गए हैं फॉर ज्वाइनिंग ऑफ फेरस मेटल्स। फेरस मेटल का मतलब लाइक स्टील, माइल्ड स्टील है, ठीक है, स्टील का कोई अलॉय है और दूसरी चीजों उनको ज्वाइन करने के लिए हम कॉपर बेस्ड अलॉय इस्तेमाल करते हैं। और एल्यूमिनियम की ब्रेजिंग करने के लिए हम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फिलर मटेरियल यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो एक हल्का सा इंफॉर्मेशन है अबाउट द फ्लक्स यूज एंड द फिलर मटेरियल यूज्ड इन ब्रेजिंग। यहाँ पे यदि आपको कुछ पूछना है ब्रेजिंग के बारे में, डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, हाउ इट विल वर्क, ठीक है, देन यू कैन आस्क। आगे चले बेटा, किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क कर देना सब लोग चैट बॉक्स में। आगे चलें, ठीक है। यस सर। यस। अब आता है सोल्डरिंग। यदि आपको ब्रेजिंग की डेफिनेशन याद है तो ऑलमोस्ट द सेम डेफिनेशन इज ऑफ सोल्डरिंग आल्सो, बट द डिफरेंस इज इन दिस वर्ड अबव। यहाँ पे लिखा है अबव 450 डिग्री सेंटीग्रेड, वहां पे लिखा होगा बिलो। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, डेफिनेशन दिखाता हूँ। टेम्परेचर सेम रहता है सर? नहीं, बिलो 450, बिलो 450 मतलब मेकिंग ऑफ joint with the help of filler material whose melting point is below 450 degree centigrade and is below the solidus temperature। ये कंडीशन तो जरूरी है चाहे हम ब्रेजिंग करें या सोल्डरिंग करें। ये कंडीशन जरूरी है कि जो फिलर मटेरियल है उसका मेल्टिंग पॉइंट या उसका लिक्विडस टेम्परेचर बेस मेटल के सॉलिडस टेम्परेचर से कम होना चाहिए। आप ये बता सकते हैं कि लिक्विडस टेम्परेचर क्या है एंड सॉलिडस टेम्परेचर क्या है? एनीवन? कोई भी बता सकता है? सर लिक्विड टेम्परेचर लेस देन 450 डिग्री सेल्सियस है सर। नहीं, लिक्विडस टेम्परेचर है क्या? मेल्टिंग पॉइंट है सर। वेरी गुड, तो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल का, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और सॉलिडस टेम्परेचर? सर उस टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाएगा सर फिलर मटेरियल। वेरी गुड, बिल्कुल। नहीं, उस टेम्परेचर के, जैसे मान लो अपन स्टील को गर्म करते हैं तो स्टील रेड हॉट तो होने लगता है, लेकिन पिघलता कब है? वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे आगे पिघलता है कंप्लीटली, 1400 के ऊपर। और पिघलना कहाँ से स्टार्ट होता है? अराउंड 900 और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो टेम्परेचर जिस पे मेटल कंप्लीटली सॉलिड है, दैट टेम्परेचर इज नोन एज सॉलिडस टेम्परेचर, ठीक है। वो अलग अलग मेटेरियल के लिए अलग होता है। स्टील के लिए अराउंड 800, वो चूंकि स्टील में बहुत सारे अलॉयज पॉसिबल हैं इसलिए स्टील के लिए जनरल लिखा है 800 टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 800 यदि है तो 800 के नीचे तक आपने उसको गर्म किया तो 800 के नीचे वो क्या होगा? सॉलिड स्टेट में होगा। और 800 के ऊपर जैसे जाओगे तो हल्का सा पिघलना स्टार्ट होगा तो वो लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है।
So solidus temperature is a temperature below which a material will always remain in solid state, whereas liquidus temperature of a metal is the temperature above which बोल रहा हूँ मैं, above which it will remain in liquid state. तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि फ्लर मटेरियल मेल्टिंग पॉइंट और लिक्विडस टेम्परेचर शुड बी बिलो 450 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ब्रेजिंग में क्या लिखा हुआ है कि लिक्विडस टेम्परेचर ऑफ फ्लर मटेरियल इज अबव 450 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है ना? तो ये बेसिक डिफरेंस है डेफिनेशन में. आप एक डेफिनेशन याद कर लो और अपने आप से दोनों डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हो फिर. ठीक है. ज्वाइंट डिजाइन इज सिमिलर टू ब्रेजिंग. जैसा ब्रेजिंग का बनता है वैसे सोल्डरिंग का ज्वाइंट डिजाइन होता है. इसमें भी कैपिलरी एक्शन का होना जरूरी है. यदि कैपिलरी एक्शन नहीं होगा, कैपिलरी एक्शन समझ में आता नहीं आता आप लोगों को? डू यू नो व्हाट इज कैपिलरी एक्शन? सर पानी जब ऊपर चढ़ते है वो वाला एक्शन जो होता है उस टाइप. एग्जांपल बिल्कुल सही जा रहा. देखो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि इफ वी पुट अ ट्यूब ऑफ ग्लास, कांच की बनी हुई ट्यूब को जिसका डायमीटर कम है, if we put the tube in a tub filled with water, ठीक है ना, there is certain level of water in the tub, या जिस भी पॉट पे आपने बर्तन को पानी को भरा उसमें उसका कुछ लेवल है. but once you put a tube of glass inside that tub or pot, then what happens? The rise of the level of water is at some much higher height in the tube itself. तो ट्यूब में वो थोड़ा सा ज्यादा ऊपर क्यों चढ़ जाता है? That phenomena occurs because of surface tension and capillary action. ठीक है ना? अपने आप ऊपर चला जाता है. कैपिलरी एक्शन का दूसरा एग्जांपल है कि if we put a break of clay in the sand in the water, then what happens? कि that break completely get moistured. उसमें पूरी की तरफ वहां पर मॉइस्चर अपने आप आ जाता है, भले हमने उसको ऊपर डिप ना किया हो. तो ये जो एक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? कैपिलरी एक्शन की वजह से होता है. तो सिमिलरली दिस phenomena is necessary whether it is brazing or whether it is soldering. So joint design is similar. Capillary action is necessary to occur in this case also. Then what about the strength of solder joint? Soldering joint की strength कम होनी चाहिए, brazing joint से ज्यादा होनी चाहिए. बता सकता है कोई? यहाँ पे हमने लिखा है कि स्ट्रेंथ ऑफ सोल्डरिंग ज्वाइंट इज लोअर देन ब्रेस्ड ज्वाइंट. क्या ये सही है गलत लिखा है? यदि सही है तो क्यों और गलत है तो क्यों? ब्रेजिंग ज्वाइंट की स्ट्रेंथ सोल्डरिंग ज्वाइंट से ज्यादा है या सोल्डरिंग ज्वाइंट की स्ट्रेंथ ब्रेजिंग ज्वाइंट से कम है, ऐसा क्यों? कोई भी अपने आप को अनम्यूट करो, बताओ. इसमें कोई कठिन काम नहीं है. यदि आप डेफिनेशन पे ध्यान दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका. भविष्य पंजवानी, टेम्परेचर के कारण. देखो whatever filler material which we are using in brazing, the melting point of the filler material is higher than 450 degrees centigrade. But the filler material which are used in soldering, those filler materials are such that whose liquidus temperature or melting point is below 450 degrees centigrade. So once if we consider two joints, one made by brazing, another made by soldering, and we put into service or use, then what happens? The strength of brazed joint will be much higher because it is entirely dependent upon the temperature. टेम्परेचर. यस सर. हाँ, टेम्परेचर फिलर मटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट पर डिपेंडेंट है. तो ये ज्यादा होगी कहाँ पे? ब्रेजिंग में, और कम होगी कहाँ पे? सोल्डरिंग में. सोल्डरिंग. ठीक है ना? तो ये कभी भी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसको, ये चैप्टर बहुत छोटा सा बेटा, 2-4 पेज ही है इसमें, आप उसमें देखोगे ना, लेकिन इसमें कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जैसे व्हाट इज द फ्लक्स यूज्ड इन ब्रेजिंग, व्हाट इज द फिलर मटेरियल यूज्ड इन ब्रेजिंग. सिमिलरली वी हैव टू स्टडी व्हाट इज द फिलर मटेरियल यूज्ड इन सोल्डरिंग एंड व्हाट इज द फिलर मटेरियल यूज्ड फ्लक्स यूज्ड इन सोल्डरिंग. ये सिमिलर होना चाहिए कि अलग-अलग होने चाहिए? मतलब जो फिलर मटेरियल ब्रेजिंग में इस्तेमाल हुआ है, क्या वही फिलर मटेरियल सोल्डरिंग में भी इस्तेमाल होगा? नो सर. नहीं सर. टेम्परेचर डिफरेंस है सर दोनों में क्योंकि. यस, ये अपन ने लिख ही दिया यहाँ पे कि चूंकि वहाँ पे फिलर मटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस है,
So whatever filler material which is used in brazing, the same filler material cannot be used in soldering. यदि आपने कर लिया है तो वो प्रोसेस होगी, वो जैसे मान लो आपने ब्रेजिंग वाला फिलर मटेरियल इस्तेमाल कर लिया है, तो जो प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी? ब्रेजिंग होगी, ना कि सोल्डरिंग, क्योंकि बाकी प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है ब्रेजिंग और सोल्डरिंग की, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन इसका नाम भी देख लेते हैं, फिलर मटेरियल। देखो ये तो ठीक है लिखा हुआ है, ज्वाइंट मस्ट बी थॉरोली क्लीन्ड, ऑक्साइड स्किल शुड बी रिमूव्ड बाय पिकलिंग, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। फ्लक्स इज एडेड टू प्रिवेंट ऑक्साइड फॉर्मेशन, ये लिखा है फ्लक्स। Flux used in case of soldering is rosin and rosin plus alcohol based fluxes used for electrical soldering work. आप में से किसी ने कभी सोल्डरिंग की है या देखी है कहीं पे दुकानों पे? यस सर। वो क्या करती है, हल्का सा वैक्स जैसा कोई चीज डब्बी रखी रहती ना, वैक्स लाइक मटेरियल, बट दैट वैक्स इज एक्चुअली फ्लक्स, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल सोल्डरिंग वर्क के लिए जो फ्लक्स इस्तेमाल होता है दैट इज रोसिन एंड रोसिन प्लस अल्कोहल बेस्ड फ्लक्स, ठीक है ना। एंड इट प्रिवेंट्स द ऑक्साइड फॉर्मेशन ड्यूरिंग सोल्डरिंग, ड्यूरिंग जॉइनिंग। समटाइम्स ऑर्गेनिक फ्लक्सेस आर आल्सो यूज्ड, लाइक इसमें लिखा जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। लेकिन इसमें क्या होता है, जो फ्लक्स अपन इस्तेमाल करते हैं, दीज फ्लक्सेस आर ऑफ करोसिव नेचर। मतलब यदि अपन ने ज्वाइंट को फ्लक्स वहीं पर, एक्चुअली सारे का सारा फ्लक्स तो इस्तेमाल होता नहीं, कुछ पड़ा भी रह जाता वहाँ पे, अप्लाई ज़्यादा करते हैं। तो यदि फ्लक्स वहाँ पे बचा रह गया तो वो करोसिव एक्शन करेगा स्टील के मटेरियल में, ठीक है ना। तो क्या करेगा, करोशन करेगा। तो उसको प्रिवेंट करने का तरीका क्या है कि वंस वी हैव फिनिश्ड सोल्डरिंग देन वी हैव टू क्लियरली वाइप आउट द ज्वाइंट। उस ज्वाइंट को प्रॉपर्ली क्लीन करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फ्लक्स वहाँ पर रह जाएगा और वो उस ज्वाइंट की करोजन करेगा, ठीक है। दीज कैन बी यूज्ड इन पाउडर, पेस्ट और लिक्विड फॉर्म, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, पेस्ट के फॉर्म में भी, पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस का वक्त तो अपन ने देखा होगा, बट सोल्डरिंग इज ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज ऑल्सो। यदि आप कभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में वर्कशॉप में काम करोगे, किसी इंडस्ट्री में काम करोगे और जहाँ पे हो रही होगी, तो आप देखोगे कि इसके वाइड एप्लीकेशंस हैं। ये in order to make a watertight joint, a leak proof joint of boiler, we do soldering। मतलब सोल्डरिंग हम नॉर्मली क्या करते हैं, वहाँ पे रिवेट्स इस्तेमाल करते हैं सीट्स को ज्वाइन करने के लिए, बॉयलर सीट को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन उनके ज्वाइंट को एयर प्रूफ या एयर टाइट या वाटर प्रूफ या वाटर टाइट बनाने के लिए फिर हम क्या करते हैं, सोल्डरिंग भी करते हैं, ठीक है ना। तो सोल्डरिंग के दूसरे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन हमको कैसे याद रहता है, हमको याद रहता है कि इलेक्ट्रिकल वाला जो कनेक्शंस का अपन देखते हैं ना रिपेयर करने का, उसका हमें याद रहता है। व्हाट अबाउट फिलर मटेरियल्स? फिलर मटेरियल्स यूज्ड इन केस ऑफ सोल्डरिंग आर अलॉयज ऑफ लेड एंड टिन। जो फिलर मटेरियल अपन ने इस्तेमाल किए थे वहाँ पे ब्रेजिंग में, वो क्या थे, फॉर ज्वाइनिंग ऑफ स्टील फेरस मटेरियल्स बी यूज्ड कॉपर अलॉयज। लेकिन यहाँ पे एक ही नाम लिखा गया है, ये अलग अलग भी कुछ कहीं पे मिल सकते हैं, बट मोस्टली अलॉयज ऑफ लेड एंड टिन आर यूज्ड फॉर सोल्डरिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है ना। तो ये आज अपना मतलब था बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट ब्रेजिंग सोल्डरिंग। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। यदि आपको नहीं है तो फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। किसी को भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बिल्कुल से अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। लो समा, कोई डाउट नहीं किसी को? एक एक करके पूछूं मैं? चलो, अब हमारा सवाल ये है कि कैन यू कंपेयर ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग। मैंने क्वेश्चन दिया कि डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग, हाउ मेनी पॉइंट यू कैन राइट? तो एनीबॉडी? मेल्टिंग पॉइंट जो होगा यस सर होता है देखो, अपन सीक्वेंस में सबसे पहले तो डेफिनेशन में डिफरेंस लिख दिया अपन ने। यस सर, एक लिखा डेफिनेशन, टेबुलर फॉर्म में लिखा डेफिनेशन, फ्लैट मटेरियल हाँ उसकी डेफिनेशन लिख दी अपन ने ब्रेजिंग की, और सोल्डरिंग की डेफिनेशन लिख दी। देन कम द डिफरेंस इन फ्लैट और मटेरियल। कहाँ पे डिफरेंस आता है? सर फ्लक्स में आता है, फ्लक्स फ्लक्स में, उसके फ्लक्स में सर जो फ्लैट मटेरियल यूज करेंगे वो भी तो अलग अलग होगा ना। फ्लक्स, हाँ तीसरा आ जाएगा फिलर मटेरियल में, ठीक है। और कहाँ पे आ जाएगा? एप्लीकेशन में आ जाएगा नॉर्मली। फिर स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट, उसमें भी एक डिफरेंस आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा?
Yes, sir. So 4-5 differences you can write very easily between Yes, sir. brazing and soldering. Difference in definition, a difference in flux use, Task difference in and color material use, color material, difference in strength of the brazed application. joint, soldered joint. अब मैं आपको दूसरा सवाल बोलता हूँ. सवाल ये है कि कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन वेल्डिंग एंड ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग एज अ होल. मतलब एक कैटेगरी में अपन ने वेल्डिंग रखा, एक कैटेगरी में अपन ने क्या रखा, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग. तो क्या इनको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो? यस सर, उसमें भी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा. और बिल्कुल से ठीक है, एक और ये डेफिनेशन हो सब गया. उस फिर ये सब फ्लैट मटेरियल बेंडिंग में वेल्डिंग में सेम फ्लैट मटेरियल यूज करते हैं. देखो वेल्ड, एक और डिफरेंस सबसे बड़ा है कि और वेल्डिंग टेम्परेचर भी में, हो जाएगा. वेरी गुड, Yes, वेल्डिंग sir. में आपको गैप मेंटेन करके रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि Yes, वेल्डिंग sir. के लिए कैपिलरी एक्शन नेसेसरी नहीं है. But capillary action is necessary in case of brazing and soldering. So proper clearance should be made between workpiece to be joined using brazing or soldering. But there is no need of capillary action in case of welding, so it is not needed. मतलब clearance should not be maintained properly. Number 1. ठीक है. Number 2, welding is a metallurgical fusion process where interfaces of the parts to be joined by welding are also melted. But it is not necessary in case of brazing and soldering. सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग. यस सर. ठीक है. तो ऐसे अपन और फिर एप्लीकेशन, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्डेड जॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ ब्रेज सोल्डरिंग जॉइंट किसकी ज्यादा होती है? वेल्डिंग जॉइंट की ज्यादा होती है. सो दैट्स व्हाई वी कैन जैसे राइट, वेल्डिंग की ज्यादा होती है बिल्कुल सही. सो वी कैन राइट मोर नंबर ऑफ, और दोनों की कम होती है. बिल्कुल सही. और सर कैपिलरी और- एक्शन के बारे में फिर से एक बार. सर वेल्डिंग का बताओ. स्ट्रेंथ हाई होता है बिल्कुल सही. और ब्रेजिंग का लो होता है और सोल्डरिंग का अच्छा भी एक लो चीज, होता है. एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं कि कैन बी ज्वाइन सिमिलर एंड डिसिमिलर मेटल्स इजीली बाय वेल्डिंग और इजीली बाय ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग?